Assalamu alaikum, dear students. Hope you're all staying home and staying safe during this pandemic. So, today's lecture is a continuation of our previous lecture, which was about statistical evaluation of the data. So, we have to cover certain other topics under the same main topic. So, first of all, let's discuss what is range. Range can be defined as the difference between the largest and the smallest values of the data set. And suppose you have a data set consisting a certain number of quantities. So if you subtract the smallest number from the largest one, then it will be termed as the range. इसी बात को हम एक फॉर्मूला की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेंज जो होगी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट विल बी the largest value minus the smallest one. So we can also show it by an example. Suppose we have a data set that consists of values like 3.235, 3.233, 3.016, and 3.20. Now its range can be easily calculated as we can subtract the smallest value, which is 3.016, from the biggest one, which is 3.235, and the answer would be 0.219. Now, what does range tells us about the data? So basically, it provides information about the total variability in the data set, but it is unable to give information about the distribution of the individual values. क्योंकि ये आपको एक general concept जरूर दे देती है कि what are the largest and the smallest values, but it will be unable to tell you about the spread of the general value or the distribution of the individual values. The next topic is standard deviation. इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी और द वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द स्प्रेड और डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज अबाउट द मीन, or you can also say that a quantity expressing by how much the members of a group differ from the mean value for the group. And suppose you have a certain set of data consisting of different numbers. तो आपके जो वो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो अपनी मीन वैल्यू के अलोंग कितना कोरिलेट करती हैं, उससे कितने मिलते जुलते हैं, उनका जनरल स्प्रेड क्या है, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगी. सो मैथमेटिकली इट इज जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एंड इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार whole square divided by n minus 1, and this whole quantity we will take the under root of this, and that is skipped here. So इसमें अगर हम इसको specify करें formula को तो आपके पास S जो है it will stand for standard deviation, xi जो है it is one of the n individual values in the data set. यानी suppose your data set consists of n number of values, तो उसमें से कोई भी जो एक individual value होगी उसको हम कह देंगे कि this is xi, और जो x bar है that will represent the mean value or the average of the data set. So हम इसके ज़रिए से यानी आप किसी भी वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे, उसको होल स्क्वायर लेंगे, देन यू विल डिवाइड इट फ्रॉम n माइनस 1 यानी होल नंबर ऑफ वैल्यूज में से एक को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज आएंगी उसका जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन हैज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद प्रिसिजन, यानी आपके पास कोई भी क्वांटिटी है कंसिस्टिंग और एनी डाटा सेट, तो उसमें कितना प्रिसिजन है ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल सकता है. जस्ट बिकॉज वी हैव सेड दैट इट हैज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये होगा कि इफ़ एस इज हाई देन प्रिसिजन विल बी लो, and if S is low then greater value of precision. And if you want to have greater precision in any kind of data, then it means that standard deviation should have small number. And standard deviation or ST shows the variation in the data. If the data is close together, the standard deviation will be small or vice versa. वेरिएशन को शो करता है, मतलब क्वांटिटीज जो है वो किस तरह से यू कैन गो फ्रॉम द स्मॉलर नंबर टू द बिगर वन, या उनका डिफरेंस कितना ज़्यादा है या उनमें वेरिएशन कितनी ज़्यादा है, ये सारे का सारा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलेगा. एंड इफ योर वैल्यूज आर प्रिटी क्लोज टुगेदर
और आपको पता है कि जब आपकी डाटा सेट की क्वांटिटीज़ बहुत एक दूसरे के क्लोज़ होती हैं तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटीज़ प्रिसाइज़ हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसिजन। अगर किसी डाटा सेट में ज़्यादा प्रिसिजन होगी तो इसका मतलब है कि उसकी जो एसडी है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम होगी और वाइस वर्सा। Now generally instead of standard deviation we use relative standard deviation as it immediately gives the level of precision of the data set relative to its individual values। जहाँ पे भी वर्ड relative आ जाता है किसी भी scientific term के साथ तो हमेशा जान लें कि इसका मतलब ये है कि you will compare your value with any standard value। तो relative standard value का भी मतलब ये होगा कि आपके पास अगर आप quickly पता लगाना चाहते हैं कि what is the level of precision in any kind of quantity तो बजाय standard deviation के we have to go for the relative standard deviation और इसका जो फॉर्मूला होगा that will be RSD is equal to S divided by mean into 1000। So ये जो सारी डिस्कशन हमने की है we can easily understand it with the help of an example। और एग्जाम्पल में यूं है कि फाइंड द मीन रेस्पिरेशन रेट पर मिनट एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन इन 4 केसेस द रेट वाज फाउंड टू बी 16, 13, 17 एंड 22। यानी हमें इस डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल से रूल्स हैं जिस तरह भी हमने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा है बट दिस एग्जाम्पल विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मीन। जो आपके पास ये जो डाटा है जो कि 4 क्वांटिटीज़ पे मुश्तमिल है इसका हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपको पता ही है कि एवरेज मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज़ एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द डाटा सेट एंड दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ 17। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल डेविएशंस। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप राइट डाउन कर लें ऑल द क्वांटिटीज़ प्रेजेंट इन द डाटा सेट। then we have to subtract the mean value from each and every value of the data set। जैसे आप देख लें सबसे पहला जो है आपके पास 16 है पहला क्वांटिटी, उसमें से जब आप मीन यानी 17 को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर -1। नेक्स्ट फॉर 13 विल गेट द आंसर -4, 17 के लिए 0 एंड 22 के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 5। अब ये जो आपने इंडिविजुअल डेविएशंस कैलकुलेट की हैं वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ देम ऑल क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास यही है कि एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू होल स्क्वायर। तो -1 का जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी 1, -4 का 16, 0 ऑब्वियसली अगेन 0 एंड 5 का हो जाएगा 25। सो जब आप इन सबको एडअप कर लेंगे तो यू विल गेट द 42। नाउ कमिंग बैक टू द मेन फार्मूला जिसमें हमने इन सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है तो आपके पास आ जाती है वैल्यू 42/4 divided by 4 under root and the answer would be 3.2। so that is how you can go for the determination of the standard deviation। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेरिएंस और ये बहुत सिंपल सा है, इसको हम बहुत आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। Now it's another common measure of the spread, but instead of variance, we usually report or represent our data as standard deviation because the mean value and the standard deviation share the same unit। यानी वेरिएंस क्या है आपके पास कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेरिएंस। यानी आप हम वेरिएंस भी यूज कर सकते हैं और हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज कर सकते हैं बट इफ वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज देन इट इज बेटर टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि उस केस में आपके पास मीन वैल्यू और फाइनल रिजल्ट जो होते हैं दे विल बी सेम यूनिट्स। और आपको पता ही है व्हेनेवर वी विल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सो इट्स बेटर टू हैव दोज क्वांटिटीज व्हिच विल हैव द सेम यूनिट्स। तो उसी वजह से हम वेरिएंस की बजाय जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफरेंस देते हैं। Variance is a useful measure of spread because its values are additive। Example आप कोट कर सकते हैं कि as it is the square of the ST, so we can easily calculate the variance for the previous example। जो हमारे पास previous example में standard deviation का result आया था that was 3.2। अगर आप उसका simply square ले लेंगे तो that will give you the value of variance और that would turn out to be 10.24। अच्छा ये जो हमारे पास टॉपिक है आउटलायर्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर कि आउटलायर्स क्या होते हैं। दोबारा से इसको एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड है। A value that is very far away from the rest of the data set or
the data point whose value is much larger or smaller than the remaining data. यानी कोई भी आपके पास डेटा सेट है कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन वैल्यूज, तो उसमें वो वैल्यू जो उन तमाम वैल्यूज से डिफरेंट होती है, यानी या तो बहुत छोटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज द आउटलायर. Outliers change the mean if included in the data set. And for example, consider a data consisting of the quantities 33, 35, 34, 44 and 36. अब इस एग्जाम्पल में दिस इज वेरी मच एविडेंट कि आपके पास जो क्वांटिटी 44 है दैट इज एन आउटलायर एज इट इज फॉर अवे फ्रॉम द अदर वैल्यूज. तो आउटलायर्स का नुकसान क्या होता है या ये किस तरह से आपके रिजल्ट की वैलिडिटी को डैमेज करते हैं? Just because if they are present, then they skew the data, so they have to be removed from the data set. यानी आउटलायर्स अगर आपके डाटा सेट में होंगे तो आपका जो रिजल्ट है उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी और ये ओवरऑल डाटा सेट को स्क्यू कर देगा. नाउ दिस इज अगेन अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू. इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. स्क्यूनेस क्या होती है? Skewness refers to the distortion or asymmetry in a symmetrical bell curve or normal distribution in a set of data. If the curve is shifted to the left or to the right, it is said to be skewed. अभी जो definition है कि आपका जो बेल कर्व है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ये आपको इस जो ग्राफ है या जो पिक्चर है इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे तो we'll get a bell typed curve which is represented by the red line here. Now this is इंडिकेटिव कि आपका जो डाटा है उसमें कोई आउटलायर मौजूद नहीं है. अगर आपके डाटा सेट में कोई आउटलायर मौजूद होगा तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस बेल कर्व व्हिच इज इन द रेड कलर, यू विल गेट द कलर कर्व्स व्हिच आर इन द ब्लू और पर्पल कलर. यानी जो आपके पास एक स्टैंडर्ड शेप आनी चाहिए बेल कर्व की, वो उससे डेविएट कर जाएगी या तो वो उससे छोटी हो जाएगी या लेफ्ट साइड पे हो जाएगी या राइट साइड पे हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा, यानी डिस्टॉर्शन ऑफ योर वैल्यूज. तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वेदर आवर आउटलायर शुड बी रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल डाटा और नॉट. और इन दोनों मकसद के लिए कि हमें उसकी रिजेक्शन किस तरह से करनी है अपने मेन डाटा में से, इसके लिए हम दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं. वन ऑफ them will be called as the Dixon's test and simply it is called as the Q test. It is used for the rejection of the results. Rejection किस चीज की? आउटलायर की from the result. It's a statistical test for deciding if an outlier can be removed from a set of data and it is used for the small data sets. यानी अगर आपके पास जो डाटा सेट्स है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू नंबर, स्प्रेड ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, तो उसमें अगर आपके पास कोई आउटलायर हो तो वी कैन इजीली अप्लाई द डिक्सन टेस्ट. ये हमें बताएगा कि क्या हमें अपने रिजल्ट को वैलिड बनाने के लिए आउटलायर को उसमें से रिमूव करना चाहिए या फिर नहीं. It is very simple to apply as it doesn't require calculation of the mean and standard deviation. और इसके लिए जो हम formula use करेंगे that will be Q calculated is equal to gap divided by range. Now let's see what these two names indicate. गैप आपके पास जो वैल्यू आएगी बहुत आसानी से जो आपके पास सस्पेक्टेड वैल्यू है, सस्पेक्टेड वैल्यू मीन्स योर आउटलायर, उसमें से आप किसी भी नियरेस्ट वैल्यू को जो मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे सॉरी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द गैप. यानी सपोज कर लें कि अगर आपके पास आउटलायर जो है वो किसी भी चीज़ में है, जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 44 है और उसके पास जो नियरेस्ट वैल्यू थी दैट वाज 36. सो इफ यू subtract the 36 from 44 then the answer would be called as the gap. सो गैप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम रेंज कैलकुलेट करेंगे. ऑब्वियसली वो आपको पता है हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दें और इसके बाद अगर आपके पास जो क्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू आ रही है इट इज़ ग्रेटर देन क्यू टेबुलेटेड वैल्यू या क्यू टेबल, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें आउटलायर को रिजेक्ट कर देना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ क्यू टेबल? क्यू टेबल्स आर अवेलेबल, ये हमें गिवन होते हैं. जब भी आप कोई टेस्ट देखते हैं तो उसके प्रिसिजन लेवल को हम सर्टेन कॉन्फिडेंस लिमिट पे जाके चेक करते हैं. तो इसलिए जो क्यू टेबल्स होते हैं ये आपको दो चीज़ें इंडिकेट करेंगे. एक तो दे विल शो यू द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन योर डाटा सेट एंड द सेकंड इज द क्रिटिकल कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस लेवल से मुराद ये है कि सपोज आपने अपना जो डाटा सेट है वो 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक करना है, 85 पे, 90 पे, 95 पे या फिर 100 पे. So accordingly you will have certain values. You just have to compare the
कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्यू विद दैट टेबुलेटेड वैल्यू, और अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आउटलायर को रिजेक्ट करना है, एंड दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द डिक्सन टेस्ट। इसको मजीद हम एलैबोरेट कर सकते हैं कि क्यू टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या मतलब? सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू ऑफ द डाटा। प्रोसीजर क्या है? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज। रेंज मीन्स the largest value minus the smallest one. Then we have to calculate the difference between the extreme value with its nearest number. Means कि आपका जो आउटलायर है उसके जो नज़दीक तरीन डिजिट है आप उसको उसमें से वैल्यू कर देंगे तो आपके पास गैप आ जाएगा। Then we have to calculate the ratio यानी Q value between the difference and the range। जैसे हमने पहले देखा है कि gap divided by range, so it will give you the Q calculated. So compare the resulting Q value with the rejection table at 90% confidence level or other selected confidence level. And if the calculated Q is greater than the Q value given in the table, then you should reject the value. Now this is the table I was talking about. इसमें आपके पास 4 कॉलम्स हैं। एन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन द सैंपल। यानी सपोज योर सैंपल और योर डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज और 4, 5, 6 अप टू 10 वैल्यूज। कोई भी इनमें से हो सकता है। यू कैन इजीली ऑप्ट एनी वन, एंड देन द अदर 3 जो हमारे पास कॉलम्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल वैल्यू or the confidence level of 90%, then 95% and 99%. We can easily suppose that if our n जो है या नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे डाटा सेट में 5 हैं तो जो क्यू क्रिटिकल की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे होगी वो होगी 4.642। सिमिलरली 95 पे हो जाएगी 0.710 और 99 पे हो जाएगी 0.821। अब इन तीनों लेवल्स में से अगर आप किसी भी लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं अपना क्यू और उसकी वैल्यू इन वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी तो यू हैव टू रिजेक्ट योर आउटलायर। सेकंड टेस्ट जो इस मकसद के लिए किया जा सकता है वो है आपके पास टीएन टेस्ट। नाउ दिस टेस्ट वाज प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एज ASTM, फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ पॉसिबल आउटलायर फ्रॉम अ डाटा सेट। इट इज बेस्ड अपॉन द एवरेज यानी x and standard deviation of the entire data set. The TN test used the difference between the suspected outlier and the data average divided by the standard deviation of the dataset. The experimental ratio value, that is T experimental, is compared to a table of critical values which is called T critical according to the sample size and the level of desired confidence. ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने Q level की बात की है कि first of all you have to determine the difference between the suspected outlier and average, और उसके बाद इसको आप standard deviation से divide कर देंगे तो आपके पास जो है वो T experimental की वैल्यू आ जाएगी, and then you have to compare it with the T critical। और वो किस तरह से या किस बेस पे कंपैरिजन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द सैंपल साइज, यानी आपका जो डाटा सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं और आप कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं। Outlier value is usually the smallest or the largest value in the data. So the formula to calculate either a small or larger value of the outlier testing is as follows. The experimental is equal to outlier minus data average divided by standard deviation. ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द TN टेस्ट। अब इसके बाद हम इससे इन्फर क्या करेंगे? So if the T experimental is greater than T critical, then the suspected outlier value can be rejected and removed from the data set. और अगर ऐसा नहीं है, यानी suppose your T experimental comes out to be smaller than the T critical, यानी जो टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, तो फिर आप आउटलायर को रिजेक्ट नहीं करेंगे। Of on a 95% confidence level, that is T is equal to 0.95, is used for evaluating the possible outliers from the data set. इस सारी डिस्कशन को आप इस टेबल के मतलब मदद से भी समझ सकते हैं कि हमने वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजेक्शन ऑफ आउटलायर्स फ्रॉम द डाटा सेट, जिसके लिए हम दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज डिक्सन टेस्ट और द क्यू टेस्ट, एंड द सेकंड वन इज दिस टीएन टेस्ट। तो टीएन टेस्ट के लिए भी जो आपके पास आ गया, जैसे पहले आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, अगेन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 up to 10। Then we have the confidence level 95%,
97.5%, and 99%. Depending upon your criteria or your wish to use any confidence level, हम अपनी calculated t experimental value को इस value से compare कर लेंगे, and if that value turned out to be more than this tabulated value, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि उस आउटलायर को अपने डाटा सेट में से रिमूव कर दें, ताकि आपकी जो सेट की या आपके रिजल्ट की जो वैलिडिटी है वो improve हो सके and your result can be more accurate. So that's all for today, and I hope that you will learn all these things clearly. And if you have any questions, then again you can contact me. So stay blessed and thank you very much.